नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। पीएम अवार्ड्स पर आधारित खास सीरीज अभिनव पहल 3.0 में एक बार फिर हम हाजिर हैं। झारखंड के गम्हरिया ब्लॉक की बदली हुई तस्वीर के साथ। गम्हरिया ब्लॉक झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के तहत आता है। गम्हरिया को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। गम्हरिया ब्लॉक ने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सामाजिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं। ये पुरस्कार सिविल सेवा दिवस समारोह के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शेड़ी में दिया गया। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ DARPG के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव जी हैं। हमारे दूसरे मेहमान सरायकेला खरसावां जिले के पूर्व DC रविशंकर शुक्ला जी हैं और हमारे तीसरे मेहमान गम्हरिया ब्लॉक के BDO अभय कुमार द्विवेदी जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। Gamharia block was identified as an aspirational block, and one of our first strategies was introducing Night Chopper, a community forum to bridge the gap between the public and administration. Since the aspirational block program began, we've been meeting directly with the district officers, especially Madam, and sharing our problems. And the best part is, the solutions come right away. With support from startups, we launched online classes, resulting in a remarkable improvement in both transition rates and pass percentages in our schools. Ever since the ICT lab came to our school, I've learned how to use computers well. Now, I can manage all my online and offline work with ease. We've set up a dedicated menstrual hygiene management (MHM) systems in all schools across the district. With the MHM lab in school, we've learned so much. Earlier, I used to hesitate even asking my mother about periods. But now our teacher explains it so well, I don't need to ask anyone else. All government Anganwadi centers in the block have been upgraded into model Anganwadis. Every 4th Thursday, I visit the Anganwadi. My health checkup, vaccinations and medicines are taken care of. Didi there also checks my baby's heartbeat and gives us nutritious meals. We've issued 100% soil health cards to farmers. As a result, we have seen a notable rise in crop yield. Before soil testing, we used fertilizers blindly. Now we know exactly what nutrients our soil needs, and that's increased both our yield and annual income. Self-help group members have started duck farming and poultry farming, which has strengthened their economic condition and inspired others in nearby villages to become self-reliant. We started a hatching center with our group for ducklings and chicks. Our poverty is now behind us, and our earnings are steadily growing. Through the Aspirational Block Program, CSC centers are now ensuring that all public services are accessible right at the Panchayat Bhavan. Today, every household in Gamharia receives clean drinking water through functional tap water connections. We have also achieved 100% target completion under the PM Awas Yojana for housing. Gamharia is now among the top performing blocks in the country. तो आपने देखा कि गम्हरिया ब्लॉक किस तरह से कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा है। रविशंकर साहब, चूँकि आप DC रहे हैं सरायकेला खरसावां ज़िले के, उसके तहत ये जो ब्लॉक है आता है और काफ़ी मेहनत भी आपने की है और सबसे पहले बधाई आपको कि आप इस श्रेणी में चुने गए। किस तरह की रणनीति आपने अपनाई, अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, जो आज आपको इस राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार
के लिए चुना गया, खासकर आपके ज़िले को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मूलतः नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी, उसमें सबसे अच्छी जो बात थी वो चिंतन शिविर के आयोजन से प्रारंभ करते हुए और सभी स्टेक होल्डर्स का एक प्रकार से इनपुट प्राप्त करना और उसके आधार पर ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाना। और हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि चिंतन शिविर समावेशी हों, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। उदाहरण के तौर पर न केवल इसमें जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको सम्मिलित किया गया, बल्कि जो पंचायती राज व्यवस्था के हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ साथ ग्रामीण और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी सम्मिलित किया गया। और समानांतर रूप से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य सहिया, इनको भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई और जिला प्रशासन तथा प्रखंड प्रशासन उनके फीडबैक के आधार पर अपनी प्रखंड विकास स्ट्रेटजी निर्माण करने में सफल रहा। और इसके अलावा हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके कार्यक्रमों का न केवल समुचित अन्वीक्षण किया जाए बल्कि उन्हें मोटिवेट भी किया जाए, एक स्कोर कार्ड के माध्यम से उनके परफॉर्मेंस को मेज़र करके और उन्हें फीडबैक दे करके। और साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का विशेष उपयोग किया गया। स्वयं सहायता समूह की हमारी दीदी हैं, उनको केवल आर्थिक सुधार से ना जोड़ते हुए सामाजिक सुधार और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। और जो एक प्रकार से टेम्पलेट नीति आयोग के द्वारा दिया गया था, जिसमें संपूर्णता अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था उसका, उस पर पर्याप्त फोकस देते हुए हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि समावेशी और सम्मिलित विकास सुनिश्चित हो सके और एक संपूर्ण आच्छादन की स्थिति की तरफ हम जा सकें। पुनीत सर, चूंकि डीआरपीजी की नुमाइंदगी आप इस शो में कर रहे हैं और लगातार डीआरपीजी बहुत ही कामयाबी से इस जो अवार्ड्स एक तरीके से जो समारोह रहा है इसका अंजाम देता रहा है, मेन कंपोनेंट्स की मैं बात करूंगा आपसे कि हमारे दर्शक अगर जानना चाहें तो क्या मेन कंपोनेंट रहे जिनको मैं अगर इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँ आपसे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों का जो प्रधानमंत्री अवार्ड्स का जो प्रोग्राम है, इसको कहते ही हैं फॉर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर नज़रिए से इसमें देखा जाता है कि कहाँ कहाँ जो प्रशासन है पब्लिक के पास सर्विसेज को अच्छी डिलीवरी करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो मूल रूप से इसमें एक पॉजिटिव कंपटीशन की इसको लाया जाता है, स्पिरिट को लाया जाता है। और अगर आप देखें तो इस स्कीम के 3 मेन कंपोनेंट हैं। एक है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें 5 अवार्ड दिए जाते हैं। इसके संग दूसरा कंपोनेंट जो इस बार ऐड किया गया, जिसके अंदर गम्हरिया ब्लॉक को अवार्ड मिला है, वो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसको पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया। इससे पहले और 6 अवार्ड्स होते हैं हमारे अपने इनोवेशन कैटेगरी में, 2 स्टेट लेवल के, 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल के और 2 सेंट्रल लेवल के। जी। तो अगर आप देखें तो प्रशासन की जितनी भी जो एजेंसीज़ हैं, एक तरीके से टॉप से लेकर के मिनिस्ट्रीज से लेकर के लास्ट ईयर तक डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग आते थे। तो इस बार प्रयास किया गया, इसमें नीति आयोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी इसको स्वीकार किया कि हमको और डीपन करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, एक लेवल नीचे जाना चाहिए। इससे क्या है कि रिफॉर्म्स और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते हैं, पब्लिक के पास और नज़दीकी तौर पे सरोकार होता है ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स का। और सरकारी ऑफिस में जो काम करने वाले आते हैं उसमें एक मोटिवेशन करने के लिए हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। उसमें बहुत पावरफुल ऑप्शन है कि अगर कोई अधिकारी या कोई जिला या कोई ब्लॉक साल भर मेहनत काम करता है और उस पर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से उनको पुरस्कार दिया जा सके, तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो इस नज़रिए के संग इस बार हम लोगों ने और भी थोड़ा इसको डीपन किया। लगभग पिछले साल हम लोगों के पास 1200 के पास आए थे नॉमिनेशन, लेकिन इस साल इस प्रोग्राम में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आने की वजह से इस बार लगभग 1600 के पास आसपास हमारे पास नॉमिनेशन आए। 437 आए थे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, 426 आए थे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में और 725 के आसपास आए थे इनोवेशन की कैटेगरीज में। तो जो
जितने भी प्रशासन के अंग हैं हर लेवल से इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाता है, हर लेवल से इसमें पार्टिसिपेशन किया जाता है और ये पूरे साल भर लोग प्रयास करते हैं, अपने प्रपोजल्स को तैयार करते हैं और उससे ये होता है कि जो अगर मैं बोलूँ कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलता है, इसको थोड़ा सा मेरे को बोलने की इच्छा है कि अगर आप एक पहले प्रोग्राम को देखें एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में, इसमें जो हाई प्रायोरिटी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनको हम लोग फोकस करते हैं और इस साल इसमें 11 स्कीम्स को लिया गया था जी। तो डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने 11 स्कीम्स की परफॉर्मेंस को अपलोड किया और इसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं। जब कंपोनेंट की बात थी, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, तीसरा होता है गवर्नेंस पैरामीटर्स जी। तो क्वांटिटेटिव में हम लोग डेटा लेते हैं, वो मिनिस्ट्रीज़ का होता है कि किस स्कीम में किस जिले का कैसा परफॉर्मेंस है। तो एक नेशनल लेवल पे एक बहुत क्लियर पिक्चर निकल के आती है कि कौन सी स्कीम में अच्छा काम चल रहा है, किस में और मेहनत की ज़रूरत है और काफ़ी मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब में 11 स्कीम का आकलन होता है, पूरा जो ज़िले का प्रशासनिक तंत्र होता है वो इसमें लग जाता है कि स्कीम्स की परफॉर्मेंस को अच्छा किया जाए, क्योंकि जो ज़िले सारी 11 स्कीम में अच्छा करेंगे वही लास्ट तक कंपटीशन में कर पाएंगे। उसके अलावा जो इसका एक सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट होता है कि डेवलपमेंट के फिगर्स के संग में कैसे आप नागरिकों के संग में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसे पब्लिक ग्रीवेंस किया जा रहा है, कैसे आपकी जनसंपर्क हो रहा है, ये फाइनल एस्पेक्ट्स होते हैं और उसके ऊपर भी 50% वेटेज रहता है। तो इसका आउटकम होता है, हमने इस बार थर्ड पार्टी ऑडिट्स भी रखा था अपने, एक सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत ऑडिट होता है, एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है कि भाई आप कोई किसी एनजीओ ने ऑडिट किया या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फंड ने आकर के देखा, तो उससे प्रशासन में काफ़ी इम्पेटस मिलता है, काफ़ी उसमें ऊर्जा मिलती है और ओवरऑल जो कि स्कीम का उद्देश्य है उसमें इनोवेशन के 6 अवार्ड्स हैं, तो इनोवेशंस में काफ़ी काम होता है और ब्लॉक में भी इस बार काम किया गया। तमाम चीज़ों को आप लोग कवर कर लेते हैं। हमारे साथ चूँकि बीडीओ साहब मौजूद हैं और आप वर्तमान में गम्हरिया के बीडीओ हैं और 500 प्रखंडों में पहला प्रखंड जिसको ये गौरव हासिल हुआ, बीडीओ साहब आपको भी बधाई। क्या कुछ ख़ास आप कहना चाहेंगे और हमसे साझा करना चाहेंगे? क्या नवीनताएं रही हैं, क्या अनूठी विशेषताएं रही हैं जिसको डीआरपीजी ने उसको संज्ञान में लिया और उसने बड़े स्तर पे वो चुना गया आपके ब्लॉक को? क्या आप अनुभव साझा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और बस यही कहूँगा कि गम्हरिया प्रखंड भी देश के अन्य प्रखंडों की तरह सामान्य प्रखंड रहा है और वहाँ भी वही समस्याएं रही हैं जो अन्यत्र रही हैं, लेकिन वहाँ पर जन भागीदारी और एक वेल मैनेज तरीके से काम करते हुए विकास के काम में सभी को साथ लेकर के चलने से ही ये संभव हो पाया है कि न केवल आर्थिक स्तर पे बल्कि सामाजिक स्तर पे भी हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकने में सफल हो पाए हैं। इसके लिए यदि मैं कहूँ कि 21 पंचायत हैं हमारे प्रखंड में, 21 पंचायत को ध्यान में रखते हुए और वहाँ एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या उससे संबंधित कोई सेक्टर हो, आधारभूत संरचनाओं का कोई सेक्टर हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य का सेक्टर रहा हो या सामाजिक विकास का सेक्टर रहा हो, सभी पर अपने जिला के वरिष्ठ जो अधिकारी लोग हैं अपने उपायुक्त सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है और इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और पंचायती राज संस्थाओं के जो विशेष करके जनप्रतिनिधि हैं उनका और जो वहाँ के जो माझी या प्रधान लोग हैं जी, जो वहाँ के आनुवंशिक प्रधान होते हैं, तो उनका भी मुझे उतना ही सहयोग मिला है जिसके द्वारा ये संभव हो पाया है। जी रविशंकर जी, अगर मैं सरायकेला खरसावां पूरे ज़िले की अगर मैं एक तरीके से जो कम्युनिटी इंगेजमेंट होती है उसकी मैं बात करूं, तो आपने किस तरह से जन भागीदारी को वहां पर सुनिश्चित किया और कैसे इस पूरे कार्यक्रम को ज़मीन पर लाने की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे आप उसको एक तरीके से जो है सक्षम कर पाए? सरायकेला खरसावां ज़िले में जन भागीदारी के लिए जो एक सबसे अलग प्रयास किया गया वो रात्रि चौपाल के माध्यम से किया गया। रात्रि चौपाल एक प्रकार से इनफॉर्मल गैदरिंग और डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम सभी नागरिकों से न केवल संवाद स्थापित करते हैं बल्कि एक प्रकार का गुडविल जनरेट करने का भी प्रयास करते हैं। और वो केवल ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक
कार्यक्रम की तरह उसका आयोजन किया जाता है, वो एक प्रकार से सामाजिक कार्यक्रम के रूप में हम उसका आयोजन करते हैं। और उसमें खास करके संध्या के समय लोग जुटते हैं, तो वो एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके माध्यम से हमें फीडबैक भी मिलता है, और अगर हमें किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता लोगों से होती है तो वो भी प्राप्त हो सकती है। और इस रात्रि चौपाल के माध्यम से कम्युनिटी ऑनरशिप इंश्योर करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, और ये पब्लिक लेड डेवलपमेंट इंश्योर हो सके, इसमें हमें इसके माध्यम से सहयोग मिला। और ये एक रेगुलर फीचर रहा अन्य प्रखंडों में भी, और विशेष करके जो हमारे आकांक्षी प्रखंड थे वहाँ पर। और इनके माध्यम से हमें लोगों की शिकायतों को समझने और दूर करने में भी सहायता मिली, और जो ज़मीन पर समस्याएं थी वो भी हमें त्वरित रूप से पता चल सकी। उदाहरण के तौर पर किसी आंगनवाड़ी केंद्र में अगर पेयजल की समस्या है तो इसके लिए अब हमें रिव्यू मीटिंग तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो साप्ताहिक रूप से लोगों के फीडबैक के माध्यम से हमें इसके बारे में सूचना मिल जाती थी। और एक जो बैरियर है पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स का एक जगह, और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स का अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ, उसको तोड़ने में काफ़ी हद तक सफलता मिली। बीडीओ साहब, कुछ ज़मीनी स्तर के नवाचार रहे जिनको इस्तेमाल किया आपने, और जिसके माध्यम से कुछ बदलाव लाने में आपको मदद मिली क्या? गम्हरिया प्रखंड बेसिकली इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ, लेकिन एग्रो इंडस्ट्री की ओर हम लोग बढ़े, और उपायुक्त सर भी थे, उपायुक्त सर ने भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया और एग्रो इंडस्ट्री की ओर बढ़े, ताकि रबी फसल के साथ साथ कृषि में ऐसा किया जाए जिससे कि लोग कृषि की ओर उन्मुख हों, और उसके लिए वाणिज्यिक कृषि को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश किया हम लोगों ने। गंजिया बैराज से पानी भी मिलने लगा। ये प्रयास अभी भी चल ही रहा है कि पूरे प्रखंड में पानी सिंचाई के लिए लोगों को मिल सके, और इसके लिए एक पीओज की भी स्थापना की गई, और उनको कुछ सरकारी सहायता देते हुए किस तरीके से रोज़गार से उनको जोड़ा जाए। तो ये सब चीज़ हम लोग वहाँ कर पाने में सफल हो पाए हैं, जो आगे भी सतत जारी रहेगा। पुनीत सर, ये जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड होता है, चूँकि आपका विभाग लगातार साल भर इसके लिए मेहनत करता है, आप लोग क्वेरीज भेजते हैं, वहाँ पर जो संबंधित जो ज़िले होते हैं वो औपचारिकताएं पूरी करते हैं, तो इसमें ये किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है समय के साथ में, तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, और भविष्य में अभी किस तरह की और रचनात्मक चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं? देखिए, इसका एवोल्यूशन काफ़ी इस नज़रिए से ही हो रहा है कि इसके माध्यम से हम कैसे विकास को और आगे बढ़ाएं, कैसे विकास को और त्वरित किया जाए। तो जैसा मैंने पहले बोला कि इस साल हम लोगों ने 11 होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्कीम्स ली थी, और अगर आप जो एस्पिरेशनल ब्लॉक वाला प्रोग्राम का हमारा जो क्वेश्चन है देखें, उसमें करीब 39 एवेल्युएशन पैरामीटर्स थे, और ये जो 39 एवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं, ये लगभग 8 से 9 गवर्नमेंट स्कीम्स के मतलब निचोड़ टाइप के हैं, कि उसमें हेल्थ भी कवर हो रहा है, उसमें आंगनवाड़ी भी कवर हो रहे हैं, उसमें हर तरीके का विकास आ रहा है। अब डीपनिंग के रिफॉर्म्स के बारे में जैसे बोलूँ कि इससे पहले भी हम लोग जब इस स्कीम्स को रखते थे तो अक्सर हम लोगों ने देखा कि जब मिनिस्ट्री से डेटा देते थे तो 1 या 2 पैरामीटर पे फोकस करते थे, कि अगर आंगनवाड़ी बच्चे आ रहे हैं तो कितने बच्चे आ रहे हैं, कितना परसेंटेज आ रहे हैं। इसी तरीके से विश्वकर्मा में कितने शिल्पकारों और शिल्पियों को एनरोलमेंट किया गया। और अब लास्ट ईयर इसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, और हमने कहा कि इसका स्कीम का एंड टू एंड इवैल्यूएशन आना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं है कि केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव्स को रीच कर लिया है। तो अब अगर हम विश्वकर्मा की ही बात करें तो इसमें हमने ऐड किया कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग के बाद कितने लोगों को जो उनकी एक स्कीम का कंपोनेंट इस बार दिया गया था कि एक किट उनको दी जाएगी, क्योंकि जो यूज़ कर रहे हैं औजार वगैरह काफ़ी पुराने समय के हैं, तो आज एक मॉडर्न मैनुअल मतलब किट उनको दी जाए। इसके लिए कैसे पोस्ट के संग में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के संग
और ये सारा स्कीम है मिनिस्ट्री का, लेकिन हमने उसका एंड टू एंड परफॉर्मेंस की उस शिल्पी को जिसको ट्रेनिंग दी गई थी उसको लोन उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ और उसके घर तक किट पहुंची कि नहीं, पूरी स्कीम की मॉनिटरिंग को उसमें किया। इसी तरीके से अगर हम हर घर जल योजना की बात कर रहे हैं तो अक्सर ये होता था कि कितना पाइप ले किया गया, इस बार ऐड किया गया अगर पाइप ले किया गया तो कितने घरों में पानी आया, अगर पानी आया तो कितने घंटे आया और पानी की क्वालिटी मॉनिटरिंग हुई कि नहीं हुई जी। तो उससे ये हो रहा है कि स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के साथ में उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और उसका मतलब नागरिकों तक उसका जो बेनिफिट है वो पहुंचे, बिल्कुल उसको फोकस किया जा रहा है। जी रविशंकर जी, अगर मैं पोषण की बात करूं, शिक्षा की बात करूं या स्वास्थ्य की बात करूं तो इसमें क्या खास प्रयास किए गए आपकी ओर से? सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास था वो अभिसरण के माध्यम से किया गया। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो अक्रॉस डिपार्टमेंट काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे स्वास्थ्य सहिया जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका उसमें अपना योगदान देती हैं, और पेयजल स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जल सहिया हैं जो कि अपना योगदान देती हैं, और ये सभी ग्राम और टोला स्तर पर काम करते हैं। तो हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी आपस में एक अच्छी टीम बन सके और एक टीम एफर्ट के माध्यम से समेकित प्रयास ग्राउंड पर किया जा सके। इसके साथ साथ हमने तकनीक का भी उपयोग किया, क्योंकि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र इस पूरे प्रयास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और केंद्र में थे, तो उनको हमने रिनोवेट कराया। इसमें CSR का सपोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उसका उपयोग किया गया, और ये सुनिश्चित किया गया कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो मॉडल बन सकें। वहाँ पर हम डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर का उपयोग सुनिश्चित कर सकें ताकि VHSND में सभी महिलाओं और बालिकाओं के हीमोग्लोबिन की जांच हो सके और उसके बेसिस पर डायग्नोज करके पोषण से संबंधित तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का भी टाइमली आइडेंटिफिकेशन हो सके। हमने एक डिजी निदान के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसके माध्यम से जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज थी उसको एक डैशबोर्ड के माध्यम से हम ट्रैक कर सकते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भारत नेट और साथ ही साथ एक स्टार्टअप के माध्यम से उन विषयों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई जिन विषयों के लिए डेडिकेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स नहीं थे, और इसके साथ साथ आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विद्यालयों में हमने ये सुनिश्चित किया कि सभी हमारे +2 और जो रिमेनिंग सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट लैब हो और साथ ही साथ बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, एक फंक्शनल लैब साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए और कंप्यूटर लैब, ICT लैब भी वहाँ पर उपलब्ध हो। इन सब का परिणाम ये रहा कि ट्रांजिशन रेट और उसके साथ साथ जो हमारा पासिंग परसेंटेज है +2 का और सेकेंडरी का वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ, और आगे आने वाले समय में और बेहतर करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिली। उदाहरण के तौर पर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स या फिर टीचर्स, उनको भी ये लगा कि एक ओनरशिप वो इस पूरे कार्यक्रम का अपने ऊपर लें, और उन्होंने जो लीडरशिप दिखलाई उससे कॉन्सिक्वेंटली हमें भी ये प्रेरणा मिली कि अगर उन्हें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हम उसका ससमय समाधान कर सकें। जी BDO साहब, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायत हैं या ग्राम सभाएं हैं, उनका क्या योगदान रहा? हमारे जो स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जो भी प्रतिनिधि रहे, महीना में हमेशा उन लोगों का पहले से भी आना जाना रहा है, एक परस्पर सहयोग की भावना रही है। उसके साथ ही साथ प्रखंड के जो हमारे कर्मी हैं, चाहे मनरेगा के हों या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हमारे नागरिक हों या फिर पंचायत सचिव हों, इनके माध्यम से अपने सभी नागरिकों के हमेशा हम संपर्क में बने रहते थे। लेकिन इसके साथ ही हम उनके एनर्जी का हम इस्तेमाल किए अपने विकास के कामों में, जिसको हम अभी जन भागीदारी बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हम बात करें कि इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और लोगों में जागरूकता फैलाने में
इन सब चीज़ों में जो पंचायती राज संस्थाओं के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि उनके इंटरेस्ट की चीज़ थी। और एक चीज़ देखने में आया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत सी समस्याओं का समाधान हमारे नागरिक लोग ही कर लेते हैं, हमारे पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कर लेते हैं, और वो एक तरह से हमारे हाथ और पैर का काम करते हैं जो इन संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में या फिर पोषण के क्षेत्र में या आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में हम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं। जी रविशंकर जी, चूँकि समय की बंदिश भी हमारे साथ है, आखिरी सवाल आपसे है, इस कार्यक्रम की सफलता के बाद 500 प्रखंडों में चूँकि प्रथम स्थान आया है, क्या झारखंड के दूसरे ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया या दूसरे राज्य के लोगों ने आपसे संपर्क किया, या आखिर क्या आपने वहाँ पर मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जो रेप्लिकेट किया जा सके दूसरे ज़िलों में या दूसरे प्रखंडों में या दूसरे राज्यों में? जैसा कि सर ने अभी बताया कि इस पूरे कार्यक्रम के स्पिरिट में एक प्रकार से कोऑपरेटिव कंपटीशन समाहित है। तो इससे न केवल हमारे ज़िले के अंदर जो पदाधिकारी कर्मी हैं उन्हें प्रेरणा मिली, बल्कि अन्य ज़िलों के और केवल झारखंड राज्य ही नहीं अन्य राज्यों में भी जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इसके संबंध में संपर्क किया, जानने का भी प्रयास किया, और साथ में एक इस प्रकार का डिटर्मिनेशन भी दिखलाया कि आने वाले समय में वो इससे और बेहतर करना चाहेंगे। सभी पदाधिकारियों की यही उनका प्रयास रहता है कि वो किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन कर सकें और लक्ष्य की अच्छे तरीके से प्राप्ति कर सकें। और इस उद्देश्य को साकार करने में जो रिकॉग्निशन प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से प्राप्त होता है उसकी एक महती भूमिका है। जी पुनीत सर, बहुत संक्षेप में सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं इस विशिष्ट अवार्ड के लिए जो देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों के ज़रिए एक तरीके से दिया जाता है, जो नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं उनके लिए क्या संदेश है बहुत संक्षेप में? देखिए, अगर आप देखें हमारे पास 16 अवार्ड थे और लगभग 1600 आवेदन आए थे, तो सक्सेस रेट तो 1% ही है। लेकिन मैं कोट करना चाहूँगा, हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि वेरी लिटिल डिफरेंशिएट्स द टॉप डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तो उसमें और अगर आप देखें, थोड़ा संक्षेप में तो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा विस्तृत बोल रहा हूँ कि झारखंड से गम्हरिया आए, केरला से असरगोड़ जिला से पारप्पा ब्लॉक, त्रिपुरा के ढलाई जिला से नारनूर ब्लॉक और मध्य प्रदेश के झाबुआ से रामा ब्लॉक। आप देखिए कितने रिमोट इलाके के ये ब्लॉक्स हैं, और अगर ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं तो सबके लिए यही है कि आप के प्रयास करिए, और प्रयास से न केवल आपको अवार्ड मिलने की संभावना बनती है बल्कि आप इसको एक नेशनल इंटरेस्ट में देखिए, तो उस ज़िले के, उस ब्लॉक के, उस प्रखंड के जो नागरिकों को जो इतना सम्मान मिलता है और जो डेवलपमेंट होता है वो मूल उद्देश्य, वो एक बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोग हमारे इस ख़ास कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम राज्यों के जो रिमोट एरिया के ब्लॉक्स हैं वो देश की मुख्य धारा में आए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सिविल सेवा दिवस के दिन ये सम्मान दिया। निश्चित तौर पर जो दूसरे ब्लॉक हैं देश के दूसरे राज्यों के ज़िलों के तहत जो आते हैं उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।